नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर में कर्नाटक साहित्य संघ सभागार में व्यापार और वाणिज्य परिषद द्वारा एक संवाद कार्यक्रम किया गया आयोजित। वोट बैंक के लिए धर्म आधारित आरक्षण की योजना बना रही कांग्रेस। कर्नाटक के बागलकोट से प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर वार। हासन सेक्स स्कैंडल ने कन्नड़िगांवों और भारतीयों की अंतरात्मा को झकझोर कर रखा है। महिला कांग्रेस प्रमुख अलका लांबा ने कही ये बात। अमित शाह का एडिटेड वीडियो शेयर करने के मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भेजा समन। 2 चरणों के मतदान पर बोले पीएम मोदी। पहले फेज में जनता ने विपक्ष को ध्वस्त किया और दूसरे में पस्त। अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी में हंगामा, एबीवीपी कार्यकर्ताओं से हुई झड़प। अब समाचार विस्तार से। शहर बीदर में कर्नाटक साहित्य संघ सभागार में भाजपा जेडीएस बीदर जिला व्यापार और वाणिज्य परिषद द्वारा एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संवाद कार्यक्रम में बीदर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार भगवंत खूबा, बीदर दक्षिण के विधायक शैलेंद्र बेलदाड़े, विरूपक्ष गादगी, दत्तात्री नंदकुमार, सोमनाथ पाटिल, सोमशेखर पाटिल के अलावा अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी नेताओं ने संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಕೈಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಏನೋ ಅಂತಿವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ಜಿಡಿಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ $2.2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಇದ್ದಂಥ ಭಾರತದ್ದು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ $4.2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ, ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂಬರುವಂತಹ 25 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಂದರೆ 2047ರವರೆಗೆ ಭಾರತ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ದೇಶ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪನ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಥ್ಯವಾದ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಇದೆ. ಜನರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಕಡೆ ಬಹಳ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ನಿಲುವು, ನಡೆ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಿಲುವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮತದಾರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರಕಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಕೋಷ್ಠ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 21-22 ಪ್ರಕೋಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದ ಪ್ರಕೋಷ್ಠ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ತಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಸಲಹೆ ತಗೊಂಡಾದ್ರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವರು ಬಹಳ ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಟರ್ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಬೇಕು ಟಿಪ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಕೋಷ್ಠದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೇನು ಹೋಗಲ್ಲ. 2014ರ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೂ 2014ರ ನಂತರ 10 ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಒಪ್ಪಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಪ್ಪಬಹುದು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2 ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರು.
ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನರೇಂದ್ರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೊಂದು ನಿರಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಇರ್ತದೆ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, GST ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಷ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು, ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವಂತ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ತಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಉಳಿದ ಮನೆಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ತಾವು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾಗಿ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ತಾವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಸಿದ್ದರಾಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀರೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದುಡಿಯೋಣ. ಈ ದೇಶ ಇದ್ರೆ ನಾವಿರ್ತೀವಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಅಣ್ಣನವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮೋದಿ ಅಣ್ಣನವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣತೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. तीसरे चरण के मतदान से पहले नरेंद्र मोदी कर्नाटका के बागलकोट में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने एक रैली को संबोधित भी किया। रैली में पीएम मोदी ने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने विपक्षी पार्टी पर वोट बैंक की राजनीति के लिए देश में धर्माधारित आरक्षण की योजना बनाने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने बताया कि वह देश में कभी भी ऐसा होने नहीं देंगे। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए प्रस्ताव लेकर आई है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अल्पसंख्यकों का समर्थन भाजपा के साथ है। उन्होंने संबोधित करते हुए पीएम मोदी से कहा, कर्नाटका में कांग्रेस ने संविधान बदलने और SC ST और OBC के अधिकार छीनने का अभियान शुरू किया है। हमारा संविधान धर्म आधारित आरक्षण को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन कर्नाटक सरकार ने OBC आरक्षण का एक हिस्सा मुसलमानों को दिया है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने सोमवार को भाजपा और जेडीएस का हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया और कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के भयावह मामले ने देश को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने यह संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, उल्लंघन और यहां तक कि क्रूरता के 3000 से अधिक वीडियो ने कन्नड़ लोगों और भारतीयों की अंतरात्मा को समान रूप से झकझोर दिया है। 33 वर्षीय प्रज्वल जेडीएस सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते हैं। जेडीएस पिछले साल सितंबर में आरजेडी में शामिल हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह का वीडियो एडिट कर उसको गलत तरीके से सोशल मीडिया पर डालने के मामले में दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर एक्शन लिया है। पुलिस ने रेड्डी को पेश होने के लिए कहा। आरोप है कि तेलंगाना के सीएम ने अमित शाह के वीडियो से छेड़छाड़ की थी। गृह मंत्री ने कुछ और बयान दिया था, उसको किसी और बयान से जोड़कर सोशल मीडिया पर डाल दिया गया है। तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी कर पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है। सीएम को 1 मई को दिल्ली पुलिस ने अपने नोटिस के मुताबिक तेलंगाना सीएम को जांच के लिए बुलाया है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने यह भी साफ किया है कि गृह मंत्री के वीडियो के मामले में जिस किसी की भी संलिप्तता है, गलत तरीके से वीडियो को एडिट कर उसको सोशल मीडिया पर वायरल करने में उसे शख्स को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बीच नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी रविवार को भाजपा और कांग्रेस के बीच उस लड़ाई में कूद पड़े जो प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी और धन का बंटवारा उन लोगों को जिनके पास सबसे अधिक बच्चे हैं के दावों से शुरू हुई थी। रविवार को हैदराबाद में एक रैली में ओवैसी ने प्रधानमंत्री की जिनके पास सबसे अधिक बच्चे हैं टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा, मुसलमान सबसे अधिक कॉन्डोम का उपयोग करते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी की मोदी की गारंटी टैगलाइन पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री की एक ही गारंटी है, दलितों और मुसलमानों से नफरत। ओवैसी ने ट्वीट किया, आप यह डर क्यों पैदा कर रहे हैं कि मुसलमान अधिक बच्चे पैदा करते हैं। मोदी सरकार के आंकड़ों के अनुसार मुसलमानों में जनसंख्या वृद्धि और प्रजनन क्षमता कम हो गई है। मुसलमान सबसे ज्यादा कंडोम का इस्तेमाल करते हैं और मुझे यह कहने में कोई शर्म नहीं है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों लोकसभा चुनाव के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। सोमवार 29 अप्रैल को पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नकली शिवसेना करार दिया और बिना नाम लिए संजय रावत पर भी हमला बोला। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन वाले 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे और अलग अलग लूटेंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र एक बड़बोले नेता तो कहते हैं कि 1 साल में 4 प्रधानमंत्री बनाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इस चुनाव से आप अगले 5 वर्ष के लिए विकास की गारंटी को चुनेंगे। दूसरी ओर वो लोग हैं जिन्होंने 2014 से पहले देश को भ्रष्टाचार, आतंकवाद और कुशासन के गर्त में धकेल दिया था। एमडीएस यूनिवर्सिटी एबीवीपी ने अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी ने हंगामा किया और एमडीएस यूनिवर्सिटी प्रशासन और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में टकराव हुआ है। एबीवीपी पदाधिकारी आसूराम डुकिया और कुलपति में जमकर बहस हुई। एबीवीपी पदाधिकारी कुलपति कक्ष में धरने पर बैठे। एबीवीपी ने बीएड कॉलेज में डोनेशन के नाम पर अवैध वसूली का विरोध किया। महाराणा प्रताप सभागार को भी बंद किया। करीब 2 घंटे तक नारेबाजी चली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज अमेठी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली अमेठी से 2019 में राहुल गांधी को हरा दिया था। बीती रात को स्मृति ईरानी हेलमेट लगाकर उत्तर प्रदेश के अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी में स्कूटी पर राइड करते हुए और लोगों से मिलते हुए नजर आई। 48 वर्षीय स्मृति ईरानी लोगों के साथ सेल्फी और तस्वीरें लेते हुए दिखाई दी। साथ ही उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत की और अपने क्षेत्र का जायजा लिया। बता दें कि सत्तारूढ़ बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी को अमेठी का टिकट दिया गया है। उन्होंने 2019 में भी राहुल गांधी को हराते हुए इस सीट से जीत दर्ज की थी। इससे पहले रविवार को दिन में वह अयोध्या गई थी और उन्होंने रामलला के दर्शन किए थे। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार की सारण लोकसभा सीट से नामांकन पर्चा भर दिया है। इस मौके पर लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रवि देवी और मीसा भारती भी मौजूद रहे। नामांकन भरने के बाद रोहिणी ने कहा कि मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने नहीं आई हूं। यहां मैं सब सुख छोड़कर आई हूं। मैं कोई राजनेता नहीं बल्कि आप ही की बेटी बहन हूं और मैं आपके सुख दुख में हमेशा मैं आपके साथ खड़े होने को तैयार हूं। रोहिणी ने कहा कि हमारा लक्ष्य किसी को हराना नहीं बल्कि जनता को जिताना है। 15 अगस्त से सभी को रोजगार देना है। रक्षाबंधन में सभी बहनों के खाते में 1 लाख रुपए भेजना है। मैं कसम खाती हूं कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। डबल इंजन की सरकार में लोगों को क्या फायदा पहुंचा? पिछले 10 वर्षों में बिहार में क्या कोई निवेश आया है? पिछले 10 वर्षों में लोगों की असुविधाओं में कोई बदलाव नहीं आया। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भगवान और धार्मिक स्थान के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए उनके चुनाव लड़ने पर 6 साल के प्रतिबंध की मांग का मामला में दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता वकील आनंद एस जोंधेल ने अपनी दलीलों के समर्थन में एक एडिशनल एफिडेविट भी दाखिल किया था। याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी के 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के
पीलीभीत में दिए भाषण का हवाला दिया और याचिका में कहा था कि भाषण के दौरान पीएम मोदी ने मतदाताओं से हिंदू देवी देवताओं और हिंदू पूजा स्थलों के साथ साथ सिख देवताओं और सिख पूजा स्थलों के नाम पर भाजपा को वोट देने की अपील की। हरियाणा के चरखी दादरी के छात्रा ने एक कीर्तिमान किया है। दुकानदार के बेटे और 11वीं कक्षा के छात्र मनोज सोनी ने यह कारनामा किया है और इसकी चारों ओर चर्चा हो रही है। दरअसल मनोज सोनी ने कॉफी और कपड़े से वैश्य स्कूल के प्रांगण में करीब 72 घंटों की कड़ी मेहनत कर 4000 स्क्वायर फुट आकार की हनुमान जी की कलाकृति बना दी। छात्र की कलाकृति गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। परिजनों व स्कूल प्रबंधन ने बेटे के उपलब्धि पर सम्मानित करते हुए आशा जताई है कि मनोज सोनी को वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब जरूर मिलेगा। बता दें कि चरखी दादरी के दुकानदार अनिल सोनी का बेटा मनोज सोनी ने बचपन से ही कुछ करने की मन में इच्छा थी। दादरी के वैश्य स्कूल में 11वीं की कक्षा के छात्र मनोज ने यूट्यूब से पेंटिंग की जानकारी ली और मन में नया करने का प्रण लिया। 2 वर्ष पहले भी रंगोली बनाकर छात्र मनोज ने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए कई सम्मान अपने नाम किए। यही से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सपना लेते हुए परिजनों से प्रेरणा मिली और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। छात्र मनोज ने बताया कि स्कूल प्रांगण में कपड़े पर कॉफी पाउडर और पानी की सहायता से 4000 स्क्वायर फुट आकार की हनुमान जी की कलाकृति बनाई है। छात्र ने बताया कि करीब 72 घंटे की मेहनत के बाद हनुमान जी की विशाल तस्वीर स्कूल प्रांगण में तैयार की गई है। इस कलाकारी की बदौलत मनोज ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में कर्नाटक साहित्य संघ सभागार में व्यापार और वाणिज्य परिषद द्वारा एक संवाद कार्यक्रम किया गया आयोजित। वोट बैंक के लिए धर्म आधारित आरक्षण की योजना बना रही कांग्रेस। कर्नाटक के बागलकोट से प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर वार। हासन सेक्स स्कैंडल ने कन्नड़ी गांवों और भारतीयों की अंतरात्मा को झकझोर कर रखा है। महिला कांग्रेस प्रमुख अलका लांबा ने कही ये बात। अमित शाह का एडिटेड वीडियो शेयर करने के मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भेजा समन। 2 चरणों के मतदान पर बोले पीएम मोदी, पहले फेज में जनता ने विपक्ष को ध्वस्त किया और दूसरे में पस्त। अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी में हंगामा, एबीवीपी कार्यकर्ताओं से हुई झड़प। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।